Yes, good morning all of you. Students, I hope all you are watching my videos regularly. So, as you know that yesterday we have done the classification of elements, sorry, classification of haloalkanes and haloarenes. Haloalkanes और haloarenes का हमने क्या करा था classification. So today we are going to start the new topic, that is nomenclature. Nomenclature of haloalkanes and haloarenes. So let us start. देखिए बच्चों, हमको हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का नोमेनक्लेचर करना है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे। यहाँ पर दो तरीके से हम नोमेनक्लेचर लिखते हैं, एक तो आईयूपीएसी नेम एंड सेकंड वन इज कॉमन नेम। कॉमन नेम जो होते हैं बहुत कम एलिमेंट्स का हम लिखते हैं, बट मेन जो हम लिखते हैं दैट इज आईयूपीएसी नेम। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। फॉर आईयूपीएसी नेम we use the general form, that is alk sorry hello alk प्लस एन। मतलब कि अगर हम आईयूपीएसी नेम लिख रहे हैं हेलो एल्केन्स का, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो भी हेलोजन होगा उसका नेम आएगा, आफ्टर दैट रूट वर्ड एंड देन प्लस एन। एंड कॉमन नेम हम जो लिखेंगे, कॉमन नेम हम किस तरह से लिखते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ढूंढते हैं एल्काइल ग्रुप। हम चेन में क्या ढूंढेंगे, एल्काइल ग्रुप। सो एल्क एल्काइल एंड देन जो उसके साथ हेलोजन लगी होगी तो उसको हम लिखेंगे हेलाइड, एल्काइल हेलाइड। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस टेक एन एग्जांपल CH3 CH2 Cl. This is an example of alkyl halide. So IUPAC name of this molecule is, there are two carbons and one halogen, that is chlorine. So IUPAC name में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम halogen, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्लोरो, that is chloro, and there are two carbons, so eth, and there is a single bond, so ane, chloroethane. For कॉमन नेम, अगर हम कॉमन नेम लिखते हैं तो कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्काइल ग्रुप एंड देन हैलाइड। तो हेयर इज एल्काइल ग्रुप इज इथाइल, इथाइल, and halide group is chloride. Simply we can write the common name. Another example is CH3 CH Cl CH3. In this we have to write, first we have to write the name of halogen. क्या लिखेंगे, हेलोजन का नेम। तो यहाँ पर हेलोजन कौन सी है, क्लोरीन। तो राइट द पोजीशन ऑफ द क्लोरीन, 1 2 3। तो लोकेंट ऑफ द क्लोरीन इज 2। फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो 1 2 3, इट्स लोकेंट इज 2। इसकी पोजीशन क्या आ रही है बच्चों, 2 आ रही है। तो उसका नेम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। मेन चेन कितने कार्बन की हमारी, 3 कार्बन की। तो प्रोप, all are single bond, so ane, propane. Is it clear? Now common name is, first of all we have to write the alkyl group, we have to find out the alkyl group. alkyl group क्या है बच्चों, यहाँ पर CH3 CH CH3 और यहाँ पर इक्विवेलेंट C है, ये alkyl group है। तो what is the name of this alkyl group? तो name of this alkyl group is isopropyl. You have all you have done in your class 11th types of alkyl group. So here CH3 CH CH3 is the isopropyl and chlorine is attached with it, so isopropyl chloride. So by this we write the IUPAC name and common name of the haloalkane. Now we will move to the aromatic compounds, arenes compound, haloarenes. So let us see. X. सो यहाँ पर x हमने इन जनरल लिख दिया, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ब्रोमीन। ठीक है ना, ब्रोमीन लिया हमने, तो इसका नेम हम क्या लिखेंगे, सिंपली आईयूपीएसी नेम ब्रोमो, और ये अटैच किसके ऊपर है, बेंजीन के ऊपर, ब्रोमो बेंजीन। कॉमन नेम इज ऑल्सो सेम, ब्रोमो बेंजीन। Br, Br. There are two Br attached to the benzene ring, so we will give to the locant of this halogen
groups. So IUPAC name is, so one is this bromine and two for this bromine. So there are two bromines, so we write the locants of both bromines, 1 2 di, because there are two bromine, we are using two bromine on this benzene ring, so that's why we use di. If there are three bromine, then we use tri. If there are four, then we use tetra. So 1 2 1 one bromine comes to one first position and second one is second position. So 1 2 di bromo and whole is benzene, 1 2 dibromo benzene. Is it clear? And the common name is, common name, as you all know that when there is a one function group attached to the benzene ring, with respect to that function group there is a positions on the benzene ring. For example, for this bromine, this position is ortho, this is meta, this is para, this is ortho, this is meta. So the name of this compound is ortho because this bromine is at the ortho position. Ortho dibromo, ortho dibromo बेंजीन. डाई इसलिए आ गया बच्चों, एक ऑर्थो जो आया, देखो यहाँ पे डाई ब्रोमो इसलिए आया, देखो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों फंक्शन ग्रुप कौन से हैं, बेंजीन रिंग है. और यहाँ पे ऑर्थो इसलिए आया कि एक जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे है दूसरे के रेस्पेक्ट में. इज इट क्लियर? सो बाय दिस we write the nomenclature of the haloalkanes and halorines. So you can practice the nomenclature of these compounds in NCERT at the page number 284. There are the lots of structures with their common name and the IUPAC name. There are two more examples. There are different type of examples. Let us see. CH2, CH2, Cl. Here the main chain is of two carbon and there are two halogen connected with the connected with this carbon chain, but both chlorine are at the different carbon. दोनों क्लोरीन कहाँ पे हैं, दोनों अलग अलग कार्बन पे हैं. ठीक है, तो इसका हम यहाँ पर IUPAC नेम लिखते हैं बच्चों. IUPAC. It is very simple to write the IUPAC name. First of all we will give the locant to these halogens. तो 1 and 2 दोनों हेलोजन की लोकेंट क्या आई, एक की 1 आई एक की 2 आई. अगर इधर से मूव करेंगे तो भी यही आएगा. तो नेमिंग क्या होगी, 1 2 डाई क्लोरो, और बिकॉज दे आर चेन ऑफ टू कार्बन सो एथ, एंड देयर इज अ सिंगल बॉन्ड सो एन. बट द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथाइलीन डाई क्लोराइड. एक्चुअली CH2 दो वैलेंसी यहां पर हमने खाली छोड़ दी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इथाइलीन. तो यहां पर क्या होगा, इथाइलीन डाइक्लोराइड बिकॉज देयर आर टू क्लोरीन. इज इट क्लियर? अनदर एग्जांपल इज CH2 CHCl. सो IUPAC नेम लिखेंगे सबसे पहले हम यहां पर, IUPAC. सो 1 and 2 both chlorine are coming at the first locant, one position उनकी कितनी आ रही है, 1. अगर इधर से हम मूव करेंगे तो दोनों की पोजीशन कितनी आएगी, 2. सो एज यू नो दैट वी टेक द लोएस्ट लोकेंट, तो लोएस्ट लोकेंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है. तो यहाँ पे देखेंगे दोनों की पोजीशन कितनी आ रही है, 1. तो 1 डाई क्लोरो and there are two carbons, so eth, and there is a single bond, so ane, dichloroethane. And the common name क्या होगा बच्चों, यहां पर देखेंगे ध्यान से. एक्चुअली CH3 CH and 2 वैलेंसी खाली है यहां पर, तो इसको हम क्या नेम लिखते हैं, इथाइलिडीन. इसका नेम क्या होता है, इथाइलिडीन. तो यहां पर क्या लिखेंगे, इथाइलिडीन क्लोराइड. यहां पर डाई नहीं आएगा, आप ऐसे समझ लो कि यहां पर डाई आ गया बीच में, तो इसलिए यहां पर डाई नहीं आएगा. तो ये यहां पर इस तरीके से दो एग्जांपल्स हो गए यहां पर, और ये डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल हैं. इसका हम क्या कहते हैं, इथाइलिडीन क्लोराइड. इज इट क्लियर? अच्छा, एक चीज हो रहा है बच्चों, यहां पर हम इस फॉर्म को हम क्या कह देते हैं, जेम डाई हैलाइड.
जेम डाइहैलाइड, दिस इज अ जनरल फॉर्म, जैसे हमने एलाइलिक, बेंजाइलिक, एराइलिक पढ़े थे, उसी तरीके से यहाँ पर इस टाइप के जो भी हमको कंपाउंड्स मिलते हैं उनको हम कहते हैं जेम डाइहैलाइड्स, और वी कैन से दैट जेमिनल डाइहैलाइड्स, फुल नेम जो है वो जेमिनल है, एंड दिस इज कॉल्ड विस डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड, इज इट क्लियर? और वी कैन से दैट विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, इज इट क्लियर? सो विसिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड, तो आपके सामने यहाँ पर हमने नॉमेनक्लेचर कराया, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, रेगुलर मेरी वीडियोस देखते रहें, तभी आप लोगों को इसके अंदर कुछ समझ आएगा, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा। चलिए, अब इसके बाद जो हमको टॉपिक करना है दैट वन इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखनी है हमको बच्चों, यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, methods of preparation of haloalkanes and haloarenes. Methods of preparation. So first of all, first method of preparation is from alcohol. Haloalkanes जो halogenes हम किस बना रहे हैं सबसे पहले, from alcohols। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर from alcohols। देखिए, suppose we have